Hi guys. So this is the first reading for FSA and FSA का main flavor है ना. Okay. It will start from the next reading, which is reading 30, where you start with the financial statements. So how FSA flows is that it will first in this particular reading, which we will be discussing in this video, it will give you a flavor as to what FSA is, what is the entire framework, how does an analyst, and by the way, when I say FSA, it is financial statement analysis. Okay. So how does an analyst perform financial statement analysis? Because that is the most important ingredient of an analysis, right? I mean, as an analyst, my job is to uh, research about companies, create a conclusion there, do all the due diligence and stuff. How can I do that? The first uh, source of data that I have to research is financial statements, right? So I need to know how to read them. When I say read, not read, but how do I really create a meaning out of that reading, right? How do I interpret what has been written there, what has been presented? How do I interpret? Do I interpret it as good, bad? What do I compare it to? What is the linkage between the financial statements? What is the linkage between income statement, balance sheet, and cash flows? And overall, what are the accounting standards? What do the accounting standards govern? uh, you know so basically this chapter will just give you a broad brush on how do you go about your financial analysis. इससे analysis करने को कुछ आएगा नहीं, वो next chapter से शुरू होगा, right? So FSA starts with this, where it just gives you an idea, it prepares you for what's coming. Then different financial statements, different large line items के ऊपर chapters हैं. So you go through the entire journey of understanding the financial statements to understanding the important components of financial statements, and then you move to different chapters that teach you ratio analysis, company analysis, financial modeling. So then it takes another level, right? So that is how it will flow. But ये जो बीच के chapters है ना, they are the crux of FSA. ठीक है, reading 30 to probably 37 or 38. But yeah, probably 37 तक, right? But they are the real crux of this particular subject. So yeah, without wasting time, this is a broadly very straightforward kind of a reading. Let's not waste time and do this. So, introduction to financial statement analysis framework. When I say framework, कहने का मतलब है कि why does an analyst go and do financial analysis? क्या जरूरत है financial analysis से? क्या होगा? तो सबसे पहले एक आपका रीजन होना चाहिए ना कोई भी चीज का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए. Let's say if I'm taking Reliance and conducting a financial analysis around it, a research around it, then I need to have an objective in my mind. Na? Okay, let's say if Reliance is a company that wants to raise debt and it wants me to invest, basically me to lend, okay, then my focus will be on the existing debt of the company. Then my focus will be on the EBITDA of the company, because EBITDA, because वो EBIT के बाद इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन और वो सब निकलेगा, तो मुझे समझना है कि कंपनी ईबिट कितना बना रही है. और डेट इन्वेस्टर इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बट एक इक्विटी इन्वेस्टर होगा तो वो देखेगा कि पैट कैसा है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, वो देखेगा एसेट्स किस तरीके से रिटर्न्स दे रहे हैं, व्हाट इज द रिटर्न ऑन एसेट्स, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा, केपेक्स कितना हो रहा है, एक्सपांशन कितना हो रहा है. तो इट ऑल डिपेंड्स. दैट इज व्हाई one needs to have an objective first, and that is how one can then go about financial analysis. So the entire framework of financial analysis is as follows. First, state the objective and context. जैसे मैंने बोला, context set करना जरूरी है. So set the end goal as to what do you want to achieve from this when I say it's financial analysis. ठीक है. Then once you have thought कि चलो मैं सोच रहा हूँ कि मैं debt के perspective से अगर देख रहा हूँ इसको,
Then I will gather data. Okay, then I will take data from public or private sources, micro macro sources. So सबसे पहले मैं public sources से जाके कंपनी के financial statements लूंगा, investor presentation, press releases, earnings releases लूंगा, और उससे काफी कुछ डेटा ड्रॉ करूंगा, और अब मैं अपने स्प्रेडशीट पे डालूंगा, तो मैं पीपीटी में कोलेट करूंगा. सो दैट आई विल डू. देन आई विल लुक एट अ लॉट ऑफ प्राइवेट डेटा. मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स को, ये सबको देखूंगा, समझूंगा कि कितना गूगल पे भी अलग तरीके से प्राइवेट डेटा है, तो वो देखूंगा. माइक्रो सोर्सेज मोर ओवर आई विल गेट इट फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट एंड बाय रीडिंग द मार्केट रिपोर्ट्स. मैक्रो इज मोर अबाउट व्हाट इज द स्टेट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी. तो वो सब डेटा पहले तो मैं गैदर करूंगा फॉर स्टडिंग. ओके, तो मैं पहले तो समझ लिया हूं कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ. अब द नेक्स्ट प्रोसेस इज टू प्रोसेस द डेटा. ओके, तो डेटा है ना, रॉ डेटा देखोगे ना, रेवेन्यू 3,000 करोड़. अब इससे मैं कंक्लूड क्या करूं? कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट. बट लेट्स से लास्ट ईयर रेवेन्यू 2,000 था, इस साल 3,000 है, नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट 3,500 है. देन आई नो द ग्रोथ रेट, राइट. तो दैट इज अ रेशियो, दैट्स अ फॉर्मूला. लेट्स से मैं बोलूंगा प्रॉफिट 50 करोड़ का है, तो ठीक है, ओके, प्रॉफिट है, बट मैं इसका करूं क्या? बट लेट्स से इफ आई नो द नेट प्रॉफिट मार्जिन, कि भाई 50 करोड़ का फॉर एग्जांपल पैट आया है 500 करोड़ के रेवेन्यू से, देन इट इज अ 10% पैट. दिस इज अ रेशियो. सो इस तरीके से कभी भी रॉ डेटा, पड़ा डेटा, एक लिमिट से ज्यादा आपको कुछ बोल नहीं पाएगा, राइट. यू नीड टू गेट द डेटा टॉकिंग टू यू. So to do that, you need to process the data, which involves do ratio analysis, do adjustments to metrics. इसका मतलब क्या है? When I say adjustments to metrics, इसका मतलब क्या है? When I talk about EBITDA, okay, let's say EBITDA, लोग EBITDA बोलते हैं कि 100 है, okay, और let's say EBIT 50 है. तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो कॉस्ट है, ओके, ये तो एक एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में जाता है, बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. इस पे पूरा एक चैप्टर है, बट मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. वो नॉन कैश एक्सपेंस है. अब जब मैं मेरा, लेट से अगर मेरा पर्सपेक्टिव है एज अ डेट लेंडर, ओके, अगर मुझे किसी को, कंपनी को डेट देना है, तो मैं क्या देखूंगा कंपनी में? मैं कंपनी का इबिटडा देखूंगा, basically the operating income that is left, okay, before paying out interest. Because depreciation amortization भले ही मैं interest income statement में expense दिखाऊंगा, वो cash expense नहीं है, तो वो cash, वो funds मेरे लिए free रहेंगे as a debt lender. So I will be more interested in EBITDA. That is why debt lenders are more interested in EBITDA. Now this is just one example, but what I'm saying is it is important to always adjust data and bring them back to reality, okay, and try to gauge analysis around it. ठीक है. Fourth is analyze and interpret data. कि once that you have processed the data, आपके नजर के सामने पूरा एक आपने डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया है, फिर आपको अब आपका दिमाग चलाना है. यू नाउ नीड टू एनालाइज, यू नाउ नीड टू इंटरप्रेट कि अच्छा इसका ये होगा, वो होगा, you create linkages and then form a conclusion, right. So use the data to answer the questions that were in the first step. ये स्टेप में जो क्वेश्चंस आए थे, उसका आंसर आपको ये स्टेप में मिल जाएगा. ठीक है. Then report the conclusions or recommendations. Basically, prepare a report and communicate. Whenever, let's say, if I, as an analyst, I have drawn a conclusion, okay, of something, I cannot just go to someone, let's say a senior member of the team, or to a, to an investor or to an institution. I cannot just, let's say, if I'm talking to you and you are the investors, I cannot just go and blabber and you will trust me, right? I need to properly present my analysis. पहले तो raw analysis मैं पहले create करूंगा, फिर मैं merits बताऊंगा, फिर demerits बताऊंगा, and then I will keep some amount of open ground also for feedback, जिससे मुझे पता चले मेरी analysis right है कि wrong है. So for that, communication is very important, and this communication needs to happen in the form of reports or models. ठीक है. So prepare a report and communicate. And last is update the analysis, timely updation. Maybe the company that you are analyzing today, okay, is not attractive but can become attractive tomorrow with new data that comes along. लेट्स से कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट्स बढ़ गया, तो शायद से मैं इंटरेस्टेड हूं अब कंपनी में, कल नहीं था आज हूं, राइट. लेट्स से कंपनी हैज पिवटेड इनटू अ न्यू एज बिजनेस मॉडल. लेट्स से पहले नॉर्मल स्कूटर्स का पे काम करता था, अब ईवीज में आ गया. अब मुझे पता है कि ईवीज का आज कितना स्कोप है,
what is the at what pace the market of EVs is growing. If I know that, then I will be interested. So I will always look for new data that comes and timely updation of that, so that I can always think of a alternate strategy. Next, what are the roles of financial statement analysis? मतलब कौन कौन financial statement analysis broadly उसका काम क्या होता है? तो एक तो होता है, एक एनालिस्ट का काम होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, जो यहाँ पे लिखा है दैट भाई पर्पस है कि डीकंस्ट्रक्ट करो कंपनी को, पहले तोड़ो उसको, ओके, फिर उसको समझो तोड़ के, और फिर एक कंक्लूजन क्रिएट करो इसमें ये इन्वेस्टेबल है कि नहीं है। एक वो है। दूसरा तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? As a company, let's say you are running a company and that company is basically doing a business in automobiles. Okay. You need to prepare financial statements ना, to get investors. मतलब ये जो next step है ना, financial statement analysis, वो कोई कंडक्ट तुम पे तब ही करेगा ना जब आपका आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेडी है, राइट? मैं एज एन एनालिस्ट एक कंपनी को तभी ही जाके एनालाइज करूंगा ना जब मेरे कंपनी वो कंपनी का रिपोर्ट रेडी है। लेट्स से इफ आई वांट टू एनालाइज अ कंपनी कॉल्ड एज टीवीएस मोटर्स, ओके, तो मुझे वो कंपनी का बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहिए, हिस्ट्री देखनी है, तब जाके मेरे हाथ में कुछ आएगा ना। दैट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नीड्स टू बी देयर, दैट एनुअल रिपोर्ट नीड्स टू बी देयर, those earnings releases needs to be there, जिससे मैं numbers देखूं, कुछ decipher करूं और बाद में मैं मेरा conclusion create करूं, right? So this is for companies. Annual, quarterly, semi-annual reporting by companies for the use by investors and other stakeholders. So if it's a public company, they have to follow the norms as per the accounting standards in the country. And if it's a private company, still private companies also have to report, their results to basically upload करना पड़ता है अपना results टू लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। और लेट्स से मुझे आज की तारीख में अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने, एक्सेस करने हैं, आई कैन ऑलवेज गो टू द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और वहां पे जाके मैं कोई भी कंपनी का पैसा दे के अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकता हूँ एंड उस पे रन कर सकता हूँ मेरी एनालिसिस। आई मीन मेजरली द कंपनीज दैट आर रजिस्टर्ड, उस हिसाब से तो वो हो सकता है इन इंडिया, राइट? So two purposes. One is the financial reporting, and that is from the company's perspective. And second is the financial statement analysis, that is from an analyst perspective, investor perspective, right? Now comes regulatory filings. Okay. अब यही है, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो पार्ट है ना, दैट इज नथिंग बट दैट सम्स अप द रेगुलेटरी फाइलिंग, कि भाई मैं एज अ कंपनी, लेट्स से इफ आई एम anything, like let's say if I'm Zomato, okay, so I as a Zomato, I need to file to the regulators. My regulators are whom? My regulators are basically SEBI, okay. तो मुझे उनको मेरे रिपोर्ट्स जो बने हैं, मतलब लाइक से पूरा जो परफॉर्मेंस आया है, लेट्स से क्वार्टर का आया है, एक पूरा क्वार्टर का है, उसको कोलेट करना है। वो कोलेट करके स्टेटमेंट्स बनाने हैं। वो बेसिकली वो जो स्टेटमेंट्स मैं बनाऊंगा, दोज statements need to be in line with the guidelines that are set out बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे कि इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यूएस में यूएस गैप है, ओके, ओवरऑल इंटरनेशनली एंड मोर ओवर सो इन यूरोप इट इज आईएफआरएस, ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यूएस गैप में यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो उस हिसाब से है। तो मुझे एज अ जोमैटो आई नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस दैट आर गिवन बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? कि भाई मोनिल, तू अक्रूवल मेथड से इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, तू ये पर्टिकुलर कॉस्ट को यहाँ पे लगाएगा, तू पर्टिकुलर लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी ट्रीट करेगा, नॉन करंट नहीं करेगा, तू इसको अक्रूड रेवेन्यू में डालेगा, तू इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में डालेगा, कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग नहीं डालेगा। इस हिसाब से ये हर चीज की जो गाइडलाइंस दी जाती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में होती है। उसको फॉलो करके मुझे बनाना है मेरा रिपोर्ट्स, उसको ऑडिट करवाना है। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, उसका रीजन आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड। मैं उसको लेके जाऊंगा मेरे ऑडिटर्स के पास। सो लेट्स से अगर कोई बिग फोर है, लेट्स से केपीएमजी है, तो केपीएमजी मेरे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे रिपोर्टिंग कैसे किया है, ठीक है, बिकॉज दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस टीम विद इन अ कंपनी। लेट्स से सीएफओ का जो टीम होता है ना, वो मिलके बनाता है,
ठीक है। तो वो लोग देखेंगे, अच्छा ओके ये यहाँ पे ब्रॉडली है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, ठीक है। वंस दे ओके कि हाँ ठीक है, ये ओवरऑल वॉट एवर दे प्रिपेयर्ड इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इज व्हेन जोमेटो इज अलाउड टू फाइल okay these financial reports to the regulators for their approval. And then once that is done is when the reports are out in the market over web or over press releases. तो उस हिसाब से बाद में it becomes accessible to investors. So reporting is done using the rules set by the respective accounting standards setting bodies जो मैंने बताया वो. These rules are called as accounting standards. Pretty much clear. Example: FASB and GAAP, basically Financial Accounting Standards Board, and generally accepted accounting principles. बाद में International Accounting Standard Boards and International Financial Reporting Standards. So FASB is a body which is in US, and that body has set out the US GAAP accounting standard, right? IASB is a body which is predominantly based out of Europe, and that body has rolled out an accounting standard called as International Financial Reporting Standards, right? ऐसे ही ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स इन इंडिया, और उसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको बोला जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो इस हिसाब से होता है जो मैंने समझाया वो, राइट. सो यूएस फॉलो यूएस गैप बाय एफएसबी, ईयू एंड मेनी अदर कंट्रीज फॉलो आईएफआरएस एंड आईएएसबी, राइट. हियर वी वोंट टॉक मच अबाउट इंडिया बिकॉज दिस करिकुलम डज नॉट कवर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इट इज ओनली कवरिंग यूएस गैप एंड आईएफआरएस. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, अब तक मैं रेफरेंस देने के लिए आपको समझा रहा था, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इट विल बी यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस. And this entire subject of FSA na is moreover based on US GAAP versus IFRS कि भाई ये particular treatment within an income statement or a balance sheet or a cash flow, इसका treatment क्या कैसे होना चाहिए. And it differs between US GAAP and IFRS, and that is asked in the exam. That is the most important and vital part of this particular सब्जेक्ट. ठीक है, तो वो पता चलना चाहिए कि यूएस गैप और आईएफआरएस में क्या फर्क है. यूएस गैप इन्वेंट्री में कौन सा मेथड अलाउ करता है फॉर एग्जांपल, आईएफआरएस किस क्या कौन सा अलाउ करता है. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट बिकॉज उस पे पूरा रीडिंग है, राइट. सो जहां पे मैं आपको बोल दूं ना कि वी वोंट गेट डीपर इनटू इट, मत जाना, बिकॉज वो सब बाद में प्रॉपरली डीपली कवर होगा. अभी आपको नर्वसनेस फील होगी बाद में, बेकार. The regulatory authorities like SEC, Securities Exchange Commission in US, or FCA, Financial Conduct Authority in UK, etc., have the power to enforce the accounting standards. These are established by national governments, right? So, ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जैसे कि एसईसी यूएस में है, सेबी इंडिया में है, एफसीए यूके में है. इन लोग के पास वो पावर्स है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं उसको कैसे कंपनीज पे एनफोर्स करना है. ओके, कंपनीज को बोलना है कि भाई इसके हिसाब से बनना चाहिए वरना नहीं चलेगा, राइट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली द ऑडिट हैपेंस. सो वो उस हिसाब से पूरा धंधा चलता है, राइट. सो मोस्ट नेशनल अथॉरिटीज, ये जो नेशनल अथॉरिटीज जो अलग अलग है, बिलोंग टू आयोस्को. व्हाट इज आयोस्को? आयोस्को इज नथिंग बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस. बेसिकली एसईसी, एफसीए, ऐसे दुनिया में अलग अलग सब अथॉरिटीज को मिला लो ना, तो उसकी एक मदर बॉडी बनाई है, which is called as IOSCO, which is International Organization of Securities Commission. This is more of a, World Bank kind of an organization, World Health Organization kind of a body, जिसके अंडर सब मेजर बॉडीज आती है. एंड इट इज मोर ओवर United Nations type, more over cohesive in nature, where it is trying to cater to all the parts of the world. Okay, and yeah, basically these authorities, they moreover report to IOSCO, and IOSCO gives them guidelines, क्योंकि IOSCO ऊपर ऊपर से सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो प्रॉपरली बता सकता है कि क्या किस तरीके से किया जाए. So most national authorities belong to IOSCO. Members of IOSCO run almost 95% of the world's financial markets, जैसे मैंने बताया, right? IOSCO is not a regulatory body, but it's a body of regulators. So it's a body that is formed by a lot of regulators, कि भाई यूएस का, यूके का, यूरोप का, इंडिया का, सबका मिलके एक बॉडी बनाई है विच कैन गवर्न एवरीवन, के भाई देख लो, राइट. एक मॉनिटर बना दिया है क्लासरूम का. इट इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी बट इट इज अ बॉडी ऑफ रेगुलेटर्स. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ आयोस्को इज टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, सो दैट इन्वेस्टर्स, ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, जो डेटा देख रहे हो, फ्लॉड है, जिसमें उनका नुकसान होगा, तो वो नहीं चाहिए. इंश्योरिंग मार्केट्स आर फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट.
कोई भी मार्केट का गलत तरीके से इस्तेमाल कर दे, इनसाइडर ट्रेडिंग करके, फ्रंट रनिंग करके, तो वो नहीं करना है। वन हैज टू इंश्योर दैट आयोस्को का ऑब्जेक्टिव है दैट सबको फेयर इक्विटेबल चांस मिले मार्केट में पार्टिसिपेट करने का, कोई किसी से बड़ा या छोटा ना हो। एंड रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क मैंने जो जैसे आप हमने इतना डिस्कस कर लिया है ऑल ओवर पोर्टफोलियो में, इक्विटी में, रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है कि भाई ओवरऑल रिस्क जो रहता है ना, ओवरऑल कंट्री और ओवरऑल द वर्ल्ड दैट इज फेसिंग द रिस्क, हम धीरे धीरे करके वो सब भी नीचे लाए। हम पता लगा है कि भाई कौन से रिस्क के वजह से इस दुनिया में, कौन से छोटे छोटे स्पेसिफिक रिस्क के वजह से बड़े बड़े रिस्क बन रहे हैं इस दुनिया में, तो उसको ही दबा देते हैं, तो नेचुरली रिस्क कम हो जाएगा दुनिया में। Okay, so that was about regulatory filings where you file the different statements that are required by regulators. Then comes proxy statements. What is proxy statements? This is a statement. ये statement क्या होता है? Basically कोई भी, let's say you are a shareholder in Reliance and अगर Reliance को एक important decision लेना है जिसके लिए उसको majority shareholder vote की जरूरत होगी, right? तो even you are one of the shareholders एंड लेट्स से रिलायंस नीड्स अ वोट और मेजोरिटी आया तो वो एग्जीक्यूट कर देगा अपना प्लान जो उसने रखा है वो। तो सबसे पहले तो अपना प्लान रखता है नजर के सामने आपके, ठीक है, और फिर वो इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं कि भाई देखो ये प्लान है मेरा, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट यू टू आइदर अप्रूव डिसअप्रूव जो भी है, पर वोट करो। तो वो वोटिंग लिंक्स भेजेगा आपको, अभी तो ओवर वेब होता है, पहले फिजिकली होता था। सो व्हेन आई से प्रॉक्सी, इट इज पॉसिबल दैट मोनिल मेहता एज एन इन्वेस्टर कैन कैन डेजिग्नेट समवन एल्स कि भाई आप मेरे बदले वोट कर दो। लेट्स से मेरा कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, मैंने एक फंड मैनेजर रखा है मेरे फंड्स मैनेज करने के लिए, मैं उसको भी बोल सकता हूँ कि भाई तुम मेरे मैं ज्यादा मार्केट को समझता नहीं हूँ, तू ज्यादा समझता है, मैं तुझे वो पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ कि तू मेरे एंड से जाके करके आ, जो भी है वोट दे के आ, कर ले। एंड व्हाट आर दीज वोट्स फॉर? दीज वोट्स आर फॉर, एज आई एम सेइंग, major decisions that the company takes. For that they need majority shareholder approval, right? So it is issued to shareholders when there are matters that require a shareholder vote, like election of board of directors, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडियली शेयर होल्डर के माँ बाप होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी का एक, तो हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखा था ना, कंपनी का एक तो होता है मैनेजमेंट, खुद का टीम होता है कि भाई सीएफओ, सीएमओ, सीईओ, ये सब होते हैं। दे रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, राइट? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छा है, वो बहुत जरूरी है, वरना अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई सेटिंग है मैनेजमेंट के साथ तो आपकी जिंदगी भी बिगड़ सकती है, राइट? Scams could happen. So election of BOD is very important. So that is there. Then compensation of board of directors, कि भाई board of directors को रखा है उसकी क्या पगार रहेगी, right? मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन ओवरऑल ये भी बहुत जरूरी है कि भाई लेट्स से इफ द कंपनी इज हायरिंग फॉर अ न्यू सीईओ फॉर एग्जांपल, राइट, लुकिंग फॉर अ न्यू सीईओ, देन व्हाट आर द लिमिटेड what are the basic competencies that the people or the shareholders want to see in that CEO, right? So that is important. um, so yeah, management qualifications, stock option issuances के overall let's say कोई भी stock dividend पे करना है, warrants exercise करना है, कोई बड़ा डिविडेंड पास करना है, स्टॉक ऑप्शंस बेसिकली ईसॉप्स देने हैं एम्प्लॉइज को, तो ये सब डिसीजन लेने से पहले शेयर होल्डर्स को पूछना तो पड़ेगा ना, बिकॉज दे आर शेयर होल्डर्स, बेसिकली दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। पार्ट ओनर्स तो लेना पड़ता है। सो दैट इज द फ्लेवर ऑफ अ प्रॉक्सी स्टेटमेंट। राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओवरऑल ये सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, देन वी गो डीपर। Then comes financial statement footnotes. When I say financial statement footnotes, इसका मतलब क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाता हूं ना, लाइक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो और एनीथिंग, उसके नीचे फुटनोट्स होते हैं। फुटनोट लेट्स से मैंने अगर एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से इनकम स्टेटमेंट में मैंने रेवेन्यू का नंबर डाला है, ओके, रेवेन्यू लास्ट ईयर 3000, दिस ईयर 4000, नेक्स्ट ईयर 4500, उस हिसाब से, राइट? अब अगर इसमें कोई फुटनोट है, फुटनोट का मतलब है रेवेन्यू के बाजू में किसी ने वन लिखा है और बाद में नीचे स्टेटमेंट जाते जाए उसमें वन करके रेवेन्यू का सेक्शन आता है, वेर इट डीकंस्ट्रक्ट्स द रेवेन्यू, कि भाई अगर 3000 का रेवेन्यू है, इसमें से 1000 इंडिया की मार्केट से आ रहा है, 1000 यूएस से आ रहा है और 1000 यूरोप से आ रहा है, ओके। विद इन दिस ऑल्सो सेगमेंट्स, कि भाई 500 का जो सेल्स है वो कंपोनेंट से आ रहा है, 1000 का जो सेल्स है वो लेट्स से
मेन प्रोडक्ट से आ रहा है, ये इतना रेवेन्यू आफ्टर सेल सर्विस से आ रहा है, तो इससे मुझे बिजनेस मॉडल समझे, राइट, बहुत जरूरी है. फुटनोट्स आर वेरी हेल्पफुल, राइट. सो दिस बेसिकली प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज समराइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दीज फुटनोट्स आर ऑडिटेड अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी ऐसे ही ठोक देगी कुछ भी, फुटनोट्स में कुछ भी दे देगी, ऐसा नहीं है. इवन दे आर ऑडिटेड. So if they are not up to the mark, then the auditors will raise queries and questions कि भाई इसका मुझे आप authenticity बताओ, तो that will be seen, right, and that will be well captured as well. Footnotes do the following. As I said, footnotes do the following: basis of presentation, year convention followed, entities covered in consolidation, accounting standard followed. तो भाई footnote सबसे पहले बताता है कि भाई आपका जो presentation का base है वो क्या है, horizontal balance sheet है, vertical balance sheet है, क्या है, उस हिसाब से इस पे भी आएगा आगे, horizontal vertical पे भी आगे की readings में आएगा, so don't worry, right. Year convention followed कि भाई मैं जैन टू दिसंबर कैलेंडर फॉलो कर रहा हूँ, जैसे यूएस में वो होता है फॉलो, कि फिर मैं यू नो अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहा हूँ जो इंडिया में होता है. कहाँ कहीं कहीं पे बहुत सारी जगह पे जुलाई टू जून भी यूज होता है. इवन दैट इज देयर. एंटिटीज कवर्ड इन कंसोलिडेशन, मैं जो ये रेवेन्यू का नंबर डाल रहा हूँ 3,000 करोड़, ये रेवेन्यू क्या सब एक कंपनी है, कंपनी के अंडर की सब सब्सिडरी का मिला के नंबर है, बेसिकली कंसोलिडेटेड नंबर है, कि स्टैंड अलोन एक ही कंपनी का नंबर है. बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलोगे ना, उसमें दो नंबर्स होंगे, एक होगा कंसोलिडेटेड और एक होगा स्टैंड अलोन. स्टैंड अलोन इज फॉर दोज बिजनेसेस व्हिच मेक अप फॉर मोर देन 90-95% ऑफ द मेन बिजनेस. ओके. एंड कंसोलिडेटेड व्हेन आई से, तो सब चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, सबको मिला के, एंड द मेन बिजनेस सबको मिला के एक नंबर आता है. सो वो है कि ये है, वो बहुत समझना जरूरी है. Accounting standard followed कि भाई is it following Indian accounting standard, IFRS, GAAP, whatever it is. Then accounting methods, assumptions, estimates, again as I said, based on the accounting standard that is followed, उसके हिसाब से accounting method, assumptions, estimates follow हो गए. जो प्रिस्क्राइब किया है वही accounting standard है, IFRS ने या फिर GAAP ने, तो वो भी मुझे समझाना है. अदर डिटेल्स लाइक एक्विजिशन डिस्पोजल, की भाई मैंने कोई कंपनी को अक्वायर किया है या फिर किसमें से डाइवेस्ट कर दिया है, एनी लीगल एक्शंस ऑन द कंपनी और ऑन सम अदर कंपनी दैट दिस कंपनी हैज मेड, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स, कि भाई मेरे एम्प्लॉयज के लिए जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें कितना क्या तरक्की हो रही है, क्या व्हाट इज द शॉर्टेज, व्हाट इज द एक्स्ट्रा मनी, व्हाट इज देयर. आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, लाइक लेट्स से मोनिल एंड राहुल आर ब्रदर्स फॉर एग्जांपल. तो मोनिल ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि राहुल अपने धंधे में बड़ा रेवेन्यू का नंबर दिखाने के लिए वो ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि राहुल को बोलता है कि भाई तू मेरा माल खरीद ले सो दैट मेरा रेवेन्यू ज्यादा दिखे, है मेरा भाई ही, मतलब मेरा भी उसमें स्टेक है. बेसिकली मैं रिलेटेड पार्टी कंपनी में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, नेट नेट मेरे न्यू कस्टमर्स है नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, राइट. पोस्ट बैलेंस शीट आइटम्स, मतलब समथिंग दैट इज ऑफ बैलेंस शीट, ये क्या है, इस पे डिस्कशन आगे होगा, चिल. Business segment performance, as I said, there are many different business segments, right? Some people do B2C, some people do B2B, some people do B2B2C, there are many other models, right? So क्या फॉलो हो रहा है और कौन से बिजनेस सेगमेंट के अंडर क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, जोग्राफिकली कैसा आ रहा है, एक्टिविटी वाइज क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो बहुत समझना जरूरी है. सो दैट इज दैट. In US, following are the filings that are required by SEC, Securities Exchange Commission, requires this. और मैंने ये सब पे in real life भी काम किया है, ठीक है. So basically these are the following filings, required filings that the regulator has asked, the SEC has asked to US companies like Microsoft, Amazon, Apple कि भाई ये सब reports, ये सब forms मुझे submission हो जाना चाहिए ये दिनों के अंदर, ठीक है, वरना नहीं चलेगा. So following are these forms. First is form S1. What is this form? This is filed before sale of new securities to public. इसका मतलब है कि कंपनी को जब नया फंड रेज करना है, न्यू फ्रेश इश्यू करना है, पैसा शेयर्स देके पैसा रेज करना है, नया शेयर्स बनाना है, डाइल्यूशन करना है बेसिकली, राइट. लेट से कंपनी के पास 100 शेयर्स है, 100% शेयर्स है, उसमें से लेट से कंपनी थोड़ा डाइल्यूट कर रही है, अगर रेस कर रही है पैसा, फ्रेश कैपिटल, ऐसा नहीं कि कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट दे रही है. जब प्रमोटर्स अपना स्टेक तोड़ते हैं और बाद में उसमें से पैसा रेज करते हैं, या फिर इन जनरल भी पूरा का पूरा नया ही पैसा रेज कर देते हैं, okay, by making more additional shares
ओके, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेश इश्यूएंस। तो उसके पहले ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए। देन कम्स फॉर्म 10K, दिस इज एनुअल रिपोर्ट का फाइलिंग्स, ठीक है, द एनुअल फाइलिंग्स दैट मस्ट बी डन विद इन 90 days ऑफ द एंड ऑफ फिस्कल। सो लेट्स से इफ द फिस्कल इज एंडिंग ऑन 31st December, okay, so within 3 months of it, this needs to be, annual report needs to be submitted to the SEC. Then comes form 10Q. So first was 10K, now it is 10Q. This is quarterly filings, okay, हर क्वार्टर का जो रिपोर्ट आता है, रिजल्ट आता है वो। Then comes form DEF 14. Okay, what is this? This is definitive proxy statement, adequate information that allows shareholders to make an informed voting decision in upcoming meetings. Basically मैंने क्या बोला, प्रॉक्सी वोटिंग करने से पहले एक एजेंडा आपको दिया जाएगा कि भाई आप ये चीज हो रही है कंपनी में, इसमें कुछ डिसीजन लेना है, तो अब आप इस पे वोट करना। तो ये जो प्रेजेंट करता है ना कंपनी, दैट प्रेजेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्म डेफ 14 है, फॉर्म डीईएफ और डेफ 14 है, ठीक है। Then comes Form 8K, mentions an unscheduled material event like M&A, JV, restructuring that shareholders shall know about. कि लेट से अचानक से कंपनी ने किसी के साथ जेवी किया, किसी और कंपनी को अक्वायर किया या फिर खुद अक्वायर हो गई, राइट, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कंपनी इज नॉट गोइंग थ्रू अ ग्रेट टाइम एंड यू नो इट इज चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स पिवटिंग टुवर्ड्स सम डिफरेंट बिजनेस और समथिंग। तो ये सब जो कोई मटीरियल इंफॉर्मेशन है जिससे कंपनी की वैल्यू पे असर पड़ेगा, स्टॉक प्राइस पे असर पड़ेगा, वो सब कंपनी को रिवील करना चाहिए थ्रू फॉर्म 8K। Then comes Form 144. This is filed by those intending to sell restricted control securities, private placements, QIBs. Basically, any securities for a private company or even for a public company, there are a few securities that have a lock-in. कि भाई अगर खरीदा है ना, ये कोई इंसाइडर है ना कंपनी का, इसने खरीदा है ना, तो उसका 6 महीने 12 महीने का लॉक इन होता है, 1.5 साल का लॉक इन होता है। वो लॉक इन या फिर वो जो कंट्रोल्ड सिक्योरिटीज है, उस बेसिकली लॉक इन से एक बार बाहर आ गया और बाद में किसी को बेच देना है और एग्जिट ले लेना है, एक इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर का लेट से कंपनी में 5% स्टेक है, उसको बेच के अपना पैसा लेके निकल जाना है, एग्जिट चाहिए उसको, तो उसके लिए फॉर्म 144 निकालना पड़ेगा। या फिर लेट से और एक एग्जांपल देता हूँ, या फिर लेट से कंपनी ने किसी के पास से डेट लिया है, वो लेंडर ने कंपनी को बोला है तू डेट ले ले चलेगा, मैं तुझे खुद पैसा दूंगा, बट मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, और दिस इज मोर देन अ रिक्वेस्ट, दिस इज अ कंडीशन के, लेट से मैं प्रमोटर को बोलता हूँ कि प्रमोटर, तेरे पास तेरी कंपनी में 55% शेयर होल्डिंग है, इसमें से आधा परसेंट भी बिकना नहीं चाहिए, यू हैव टू रिटेन द शेयर होल्डिंग अंटिल एंड अनलेस यू पे मी द लोन। द मोमेंट यू डिसाइड कि तुझे ये वाला स्टेक बेचना है, उसके पहले मुझे पैसा मेरा मिलना चाहिए, ये क्लॉज टर्म शीट में मैं डाल दूंगा, सो दैट मुझे वो डर नहीं है कि ये लोग मेरे पास से मेरा पैसा ले ले इंटरेस्ट पे, ओके, मेरे पास से क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ले ले और खुद अपना माल बेच के निकल जाए कंपनी से, तो वो तो गलत है ना, तो वो नहीं होने देगा। दिस इज द मैटर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड इवेंट्स, राइट। Then comes Form 3, 4, and 5. Reporting of buy, sell holdings of company shares by key person. Anyone holding more than 10% of any class of company securities. Basically, कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है, उनको कंपनी के शेयर्स में बाई सेल कुछ भी करना है, तो उनको फॉर्म 3, 4, 5 के हिसाब से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। सो yeah, these are the set of forms that one needs to file with the this one, US का regulator called as SEC, Securities Exchange Commission. As I said, segmental data reporting happens, जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी के बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स हो सकते हैं, राइट, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस इज अ कॉन्ग्लोमरेट विच इज इनटू रिटेल बिजनेसेस, which is into renewable energy, which is into telecom, which is into oil, which is the main business of Reliance. तो हर एक बिजनेस का सेगमेंट का परफॉर्मेंस अलग होता है, तो वो एक एनालिस्ट को जानना समझना बड़ा ही जरूरी है, राइट। सो बोथ यूएस गैप एंड आईएफआरएस, ओके, जैसे मैंने बताया, नाउ द गेम विल ऑल बी अबाउट दीज टू मेन, ओके, बोथ both US and IFRS require companies to report segment data. दोनों ही require करते हैं, and there is a reason why I have highlighted this in yellow, okay, and when I was preparing these notes for you all, I was thinking about this कि मैं क्यों ये येलो में कर रहा हूं, मैं आपको so that मुझे भी याद आए, FSA में अभी भी बोल रहा हूं, is all about US गैप वर्सेस IFRS। तो आपको अगर यूएस गैप और आईएफआरएस के बीच का ये जो हर चीज का जो इफेक्ट का डिफरेंस है, वो अगर नहीं पता है ना, तो आपको क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है।
तो यू नीड टू नो कि भाई कौन सी चीजें दोनों में सेम है, कौन सी दोनों में अलग है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो पूरा टेक्स्ट बुक वेन एवर यू रीड एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू डू द टेक्स्ट बुक। ओके, इसमें एफएसए हैज नो शॉर्टकट्स एट ऑल, डू इट फ्रॉम टेक्स्ट बुक प्रॉपरली। ओके, तो ये यूएस गैप और आईएफआरएस का होना चाहिए। बोथ यूएस गैप एंड आईएफआरएस रिक्वायर्स कंपनी टू रिपोर्ट सेगमेंट डेटा, दोनों में ही रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज अ बिजनेस और एन ऑपरेटिंग सेगमेंट? इट इज जस्ट सेइंग कि हम जब सेगमेंट बोलते हैं, व्हाट इज द बिजनेस और एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, सो दैट द कंपनीज नो कि भाई ओके रिपोर्ट करना पड़ेगा ये भी, राइट? उनको भी तो पता चलना पड़ेगा। So portion of a larger company that accounts for more than 10% of the company's revenue, assets or income distinguishable from other segments. जैसे मैंने बोला, कोई एक particular type of activity within the firm that accounts for more than 10% of the company revenue, तो वो आ जाएगा. In aggregate, segments reported should account for minimum 75% of the firm's external sales. Again, I will repeat. In aggregate, segments reported should account for minimum 75% of the firm's external sales. So let's say एक कंपनी है, उसका 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है। ओके, आपको आप जो जो सेगमेंट्स कंपनी के प्रेजेंट कर रहे हो, विच इज रिक्वायर्ड बाय यूएस गैप एंड आईएफआरएस, आप जो जो सेगमेंट्स ऐड कर रहे हो, वो सेगमेंट्स एटलीस्ट सब ऐड होके एटलीस्ट 75% कंपनी के टोटल सेल्स का होना चाहिए, वरना यू आर मिसिंग आउट ऑन सम सेगमेंट एंड यू आर नॉट रिपोर्टिंग इट, राइट? सो लेट्स से अगर 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो 3,000 करोड़ में से 2250 टोटल का, लेट्स से बिटवीन थ्री सेगमेंट्स, ओके, बिटवीन थ्री सेगमेंट्स 2250 का नंबर एटलीस्ट मिलना चाहिए। इतना पता रहना चाहिए कि ठीक है ब्रॉडली ये सेगमेंट्स है, बट ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, so yeah, in aggregate, segments should account for a minimum of 75% of the firm's external sales. ध्यान में रहे, अगर कुछ नहीं है, 75% मिनिमम नहीं है, तो कुछ छूट रहा है। मतलब ये 2250 नहीं है और 2000 है, तो कुछ तो भाई छूट रहा है। ठीक है, items to be disclosed for reporting segments. So when you are reporting on segments, only that particular business segment, let's say only reporting about geo or only about the renewables, only about oil. Okay, so in that, what do you need to report about different segments? One is revenue, most important. The measure of P&L, measure of ANL, assets and liabilities. Basically मुझे revenue डालना है, इंपॉर्टेंट मेजर्स विद इन पीएनएल मुझे प्रेजेंट करने हैं, लाइक इबिडा, कॉस्ट, प्रॉफिट्स, वो सब। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डालने हैं कि भाई फिक्स्ड एसेट्स क्या है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म डेट, इस पे कर्जा कितना लिया गया है, तो वो आना चाहिए। इंटरेस्ट, एक्विजिशन ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल्स का मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल। इसका मतलब कंपनी केपेक्स में कितना खर्चा कर रहा है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, विच मीन्स कंपनी कितने प्लांट्स खरीद रहा है और उस पे मशीनरी डाल के उस पे प्रोड्यूस कर रहा है। it is an asset, right? Companies investing in expansion, right? तो वो पता चलना चाहिए। depreciation, amortization, other non-cash expenses like depreciation, amortization और impairments। आप बोलोगे सर ये सब क्या है, आप फिक्र मत करो, ये सब आ रहा है आगे। ठीक है, income tax expense, equity share, everything. Basically, any important segment, basically a segment that makes up more than 10% of the revenue. I'm repeating again and again this. A segment that makes up more than 10% of the revenue needs to report these things separately. So let's say if there are 4 such segments that make up minimum of 75%, चारों का ही ये सब आना चाहिए, आपको separately report करना है financial statement में। ठीक है, segments can be geography based and also based on products and services. So it's my discretion. I can create segments based on geography like India, US, Europe, this, that, or I can create segments based on product categories, right? Like oil, retail, renewables. Yeah. So that is there. Other important elements of a financial report. MD&A, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट कॉमेंट्री। कि भाई जो सी कंपनीज रन बाय होम, कंपनीज रन बाय द प्रॉपर सीनियर मैनेजमेंट, राइट? द सीईओज, सीएफओज, सीएमओज, ये कंपनी चलाते हैं, ये कंपनी को डे टू डे चलाते हैं।
तो उनका व्यू बहुत जरूरी है एक एनालिस्ट के लिए, ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे ये ही कंपनी चलाते हैं, राइट? सो नॉट नेसेसरी दैट दिस पार्ट विल बी ऑडिटेड, ओके, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैनेजमेंट बोलता है उस पर ऑडिट होगा, बिकॉज उस पे ऑडिट मतलब क्या ही करोगे, मैनेजमेंट जनरली फ्यूचरिस्टिक बातें करेगा, वो आपको ज्यादा पास्ट की बात करेगा नहीं, इट विल ट्राई टू टॉक अबाउट फ्यूचर। हाउ कैन यू ऑडिट फ्यूचर? सी ऑडिट का काम काम क्या होता है? ऑडिट का काम होता है कि भाई ये चीज कंपनी ने रिपोर्ट की है, कि ये पर्टिकुलर चीज कंपनी ने रिपोर्ट की है, क्या ये ठीक है? तो फ्यूचर तो वो भी प्रेडिक्ट कर रहा है मैनेजमेंट, तो उसको कैसे ऑडिट किया जाए? फ्यूचर यू कैन नॉट ऑडिट, राइट? So that is why generally not audited until and unless management is talking about past or current numbers. So one of the most useful segments of a financial statement that gives an idea of business expectations. Okay, ये मैनेजमेंट बोलता है कि भाई मैं बिजनेस को आज यहाँ पे है, कल क्या करना, क्यों प्लान कर रहे हैं। लेट्स से इफ अ कंपनी इज इनटू हॉस्पिटल्स, कंपनी का अभी 10 हॉस्पिटल है, तो कंपनी बोल सकती है दैट वी विल एक्सपांड इन नॉर्थ इंडिया, नेक्स्ट ईयर तक हमारी 20 हॉस्पिटल हो जाएगी, 2 साल में हमारी 30 हो जाएगी, 10 साल में हम 500 हॉस्पिटल पे रहेंगे, ये वो, राइट? तो ये सब एस्पिरेशंस मैनेजमेंट देता है, इससे हमें भी पता चलता है कि मैं मेरे मॉडल में क्या अजम्पशंस डालूं। मोर ऑन दिस इन रीडिंग 38, 39, 40। तो चल, ठीक है। बट बेसिकली एक एनालिस्ट को फोरकास्टिंग करने में बहुत मदद हो जाती है इससे। IFRS guidelines say that MD&A section should broadly discuss the following. IFRS बोल देता है कि भाई MD&A में मैनेजमेंट को ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस, कि भाई आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, गुड्स बेस्ड बिजनेस है, कौन से सेक्टर में है, क्या करते हो। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई प्लान क्या है मैनेजमेंट का, व्हाट आर द गोल्स। कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर्स, रेशियोज बेसिकली। की रिलेशनशिप्स, रिसोर्सेस, रिस्क्स, कि भाई क्या कौन से जगह पे पार्टनरशिप की है कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ इट्स कस्टमर्स, व्हाट आर द रिसोर्सेज इट हैज, व्हाट आर द रिस्क्स दैट द कंपनी इज फेसिंग, वो सब। मैनेजमेंट शुड ऑल्सो डू द फॉलोइंग आइडियली, ये तो आईएफआरएस का रिक्वायरमेंट था, गाइडलाइन था, गाइडलाइन है नॉट रिक्वायरमेंट, एक्चुअली इट इज अ गाइडलाइन, ठीक है। तो उसमें भी गाइडलाइंस ऐसी होती है कि कोई कोई उसमें रिक्वायरमेंट होता है, कोई कोई नहीं होता है, बट दिस इज, इसमें डरना मत, दिस इज नथिंग अलार्मिंग, राइट? मैनेजमेंट शुड ऑल्सो डू द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, की भाई लेट से ये साल अगर इन्फ्लेशन लेट से बहुत बड़ा है, तो मैनेजमेंट को बताना है कि लेट से दुनिया में इन्फ्लेशन बड़ा है बट हमारी कंपनी में इतना बड़ा है कि और ज्यादा बड़ा है। लेट से अगर ओवरऑल इंडिया में 7% इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बिजनेस, बिजनेस नंबर्स लाइक रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, इबिडा मार्जिन, ये सब समझना बड़ा जरूरी है, राइट? सो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, impact of off balance sheet items, leave it for now. Basically these are those items that are not reported on balance sheet. ये क्या है मैं बताऊंगा, मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको बोल रहा हूँ मुझ पे छोड़ दो, मैं कराऊंगा आपको, आगे आएगा आगे, इस पे प्रॉपर मटेरियल है, राइट? बेसिकली इसमें यू नो समथिंग लाइक ऑपरेटिंग लीज, लेट से कोई बिजनेस चलाता हूं मैं, एंड इफ आई लीज आउट, लेट से मैं एक बिल्डिंग को लीज पे लेता हूँ टू रन माई कंपनी, बट तो मैं उसको लीज पे लेता हूँ, मैं उस पर सिर्फ रेंट देता हूँ, वो जो एसेट खरीदा है पूरा बिल्डिंग मैंने, वो मैं एसेट्स या लायबिलिटीज में डाल नहीं रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ बैलेंस शीट। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट हैपन ऑफ बैलेंस शीट, राइट? विल टॉक अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, एग्जांपल्स भी दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, बट इट इज नॉट फॉर नाउ, ओके? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस, की भाई मैनेजमेंट को वो भी गाइड करना चाहिए कि एनालिस्ट, लास्ट टाइम ये नंबर्स थे बट इस बार रीस्टेट हो गए नंबर्स, लास्ट टाइम के नंबर्स भी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो जो चेंजेस आए उस हिसाब से हमने पॉलिसीज चेंज की है, तो उस हिसाब से थोड़े सब नंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो आप आपके मॉडल में उस हिसाब से अपडेट कर देना, ठीक है, बिकॉज चेंजेस है। एंड एनी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, देन कम्स ऑडिट। जैसे मैंने बताया, नाउ बाय नाउ एवरीवन नोस, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंडक्टेड बाय सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बाय एग्जामिनिंग, बेसिकली सीए जो रहते हैं वो करते हैं बाय एग्जामिनिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड, सब चेकिंग होता है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, entire checking happens. So the objective is to enable the auditor to provide an opinion on the fairness and the reliability of financial statements, कि भाई ये financial statements fair है, bias तो नहीं है, एक एनालिस्ट इस पे रिलाई कर सकता है अपने डिसीजंस बनाने के लिए, उसके लिए ऑडिट होता है, ओके? नाउ
there can be different kinds of opinion that an auditor can give. So yeah, standard auditor's opinion. This is an independent review. Okay. Account as to if accounting standards are followed with reasonable assurance of no material errors, statements prepared in accordance with accounting standards. Basically, एक ऑडिट कंडक्ट होता है ना, उसके बाद ऑडिटर अपना एक ओपिनियन देता है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हर पॉलिसीज और गाइडलाइंस के हिसाब से बनाए गए हैं, यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है, बहुत फेयरली काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि एस्टिमेट्स पे कुछ किया है, जो डेटा है उस हिसाब से सब काम हुआ है। अगर कहीं पे एस्टिमेट्स रन किए हैं तो मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लेमर भी दिया है, तो वो सब बेसिकली चेक कर लेता है। बेसिकली इट इज चेकिंग फॉर एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशंस, आई विल रिपीट, एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स का मतलब है कि भाई कुछ घोटाला भूल तो नहीं कर दी है ना, कि जो करना चाहिए था उससे उल्टा कर दिया या कुछ, या फिर कुछ ओमिट तो नहीं कर दिया है ना। समटाइम्स कंपनीज व्हाट दे डू, सम डेटा इज वेरी अलार्मिंग, मतलब कोई एनालिस्ट वो डेटा देखेगा ना तो कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, राइट। ऐसा होता है, राइट, कि कंपनी का लेट से कोई एक पर्टिकुलर रीजन में सेल्स बिगड़ गया हो। ऐसा देखा, आप अगर थोड़ा भी फाइनेंशियल वर्ल्ड से अगर कनेक्टेड हो तो आपको पता चलेगा कि जब कंपनी का रिजल्ट बुरा आता है ना, तब वो वाले रिपोर्ट है ना, मैनेजमेंट बहुत ही ग्लेजी वे में बनाते हैं, बहुत ग्लेज लगा के बनाते हैं, सो दैट यू नो इन्वेस्टर्स का ज्यादा ध्यान ना पड़े चीजों पे। तो ये सब समझना बड़ा जरूरी है, राइट। दैट इज ओमिशन। So unqualified opinion. When I say unqualified opinion, okay. So basically now that the auditor has checked everything, the auditor will make conclusions out of it. Auditor अपना conclusion बनाएगा. So one of that is unqualified opinion. This is what? This is free from material omissions and errors. Okay. So सबसे पहले तो वो देखेगा जो मैंने आपको समझाया था कि भाई omission नहीं है ना, error नहीं है ना, तो मैं unqualified opinion देता हूँ, इसका मतलब है everything is okay. नेक्स्ट इज अ क्वालिफाइड ओपिनियन वेयर देर आर सम एक्सेप्शन, मतलब कहीं कहीं पे ऑडिटर को लगा है कि कुछ झोल झपाट हुआ है, कुछ हुआ है। ओके, तो वो ऑडिटर फ्लैग करेगा, बेसिकली दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे उसको कुछ लग रहा है और अपने कमेंट्स दे देगा। देन कम्स एडवर्स ओपिनियन। ओके, दिस इज वेयर द ऑडिटर डायरेक्टली सेज दैट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। ओके, बेसिकली यहाँ पे जो हमने फेयरनेस और रिलायबिलिटी की बात की वो है ही नहीं। सो दैट इज व्हेन अ ऑडिटर गिव्स एडवर्स ओपिनियन। सो बेस्ट इज अनक्वालिफाइड, बीच का क्वालिफाइड, देन एडवर्स ओपिनियन। And then there is another concept called as disclaimer of opinion when the auditor is unable to express opinion. मतलब कभी कभार क्या होता है, sometimes the data that is given to the auditor is not enough to create a conclusion. Auditor एक conclusion पे आ नहीं पा रहा है because of incompleteness of a few data points which he or she had asked for. तो उसके इसमें वो बोल सकते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं, जहां पे बोल सकते हैं व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, वो नहीं बता सकता है, राइट। सो दैट इज देयर। Internal controls. What are internal controls? This is the process where the company management ensures that all the processes for financial statement preparation are accurate. For public firms in US, auditors are required to give an opinion on the firm's internal controls. Internal control का मतलब ये है कि पूरा जो कंपनी चल रहा है, कंपनी में अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक होता है कोर ऑपरेशंस का फंक्शन, एक फाइनेंस का होता है, एक मार्केटिंग का होता है, एक एचआर का फंक्शन होता है। ऐसे अलग अलग फंक्शन, आईटी का फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन होते हैं कंपनी में। आर देयर प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोसीजर्स फॉर एवरी फंक्शन टू रन, राइट। हर एक फंक्शन प्रॉपरली चलने के लिए प्रोसेसेस सेट होने चाहिए, सो दैट सब एड हॉक काम ना करे। मतलब मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। एवरीवन इज फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स है क्या कंपनी में प्रॉपर, जिससे कंपनी में स्टैंडर्डाइजेशन है, जिससे कंपनी का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी बन पा रही है, राइट। तो वो बहुत जरूरी है देखना एक एनालिस्ट के लिए। एंड यूएस गैप तो इनफैक्ट रिक्वायर्स, बेसिकली पब्लिक फर्म्स इन द यूएस आर रिक्वायर्ड कि ऑडिटर्स इंटरनल कंट्रोल्स को भी ऑडिट करके देखे कि भाई हर एक फंक्शन जो है कंपनी का, उसका प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस एंड द प्रोटोकॉल्स। इफ इट इज नॉट देयर देन आल्सो गिव एन ओपिनियन देयर। सो IFRS वर्सेस यूएस गैप डिफरेंस जो मैंने समझाया वो, एंड फॉर नाउ आई हैव सी रिटर्न समथिंग। माय सजेशन इज टू इग्नोर द बिलो टेबल, इट्स नथिंग. There is an entire sheet of difference that we can have
बिटवीन आईएफआरएस एंड यूएस गैप। ओवरऑल आगे जितने भी रीडिंग्स देखेंगे उसमें आईएफआरएस वर्सेस यूएस गैप होता ही रहेगा, ठीक है। अभी ये देखोगे ना तो अभी आपको कुछ समझेगा नहीं, जैसे कि मैं यूएस गैप में हमको उतना पता है कि यूएस गैप इज गवर्न बाय एफएएसबी, वो ऊपर ही हमने देख लिया, राइट। हियर ओनली वी सॉ दैट एफएएसबी एंड गैप एंड आईएएसबी एंड आईएफआरएस आर टुगेदर। तो ये पता है दैट यूएस गैप इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS is prepared by International Accounting Standards Board. US GAAP is based on rules based. तो जितना हो सकता है यहाँ से बता रहा हूँ, वरना कोई कोई चीज मैं बोलूंगा कि वो नेक्स्ट चैप्टर्स पे छोड़ दो, वो मेरे पे छोड़ना। ओके, सो यूएस गैप इज बेस्ड ऑन रूल्स, मतलब है ना यूएस गैप में आप कोई कोई चीजों में आप लॉजिक निकाल नहीं पाओगे कि यार इसमें ऐसा क्यों एडजस्टमेंट करने बोला गैप में, बोला तो बोला, यू नो। तो इट्स वेरी रूल बेस्ड कि भाई ये है रूल, सब यही फॉलो करो। Whereas IFRS is थोड़ा principle based, where it tries to create a logic around an accounting effect. Okay? और ये सब मैं घड़ी घड़ी क्या बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग इफेक्ट के हिसाब से एक रूल बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है। रुक जाओ रुक जाओ, बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बनाने के लिए रूल्स लगते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम समझेंगे। बट वो ही जो रूल्स है ना, यूएस गैप एकदम स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेके, भाई ऐसे ही करने का। आईएफआरएस थोड़ा अजाइल है, थोड़ा लॉजिक बेस्ड ज्यादा है, यूएस गैप में लॉजिक थोड़ा आपको कम मिलेगा, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अभी बोल रहा हूँ, ये छोड़ दो, देर इज एन एंटायर चैप्टर ऑन इन्वेंट्रीज दैट वी विल डू, वेर यू विल अंडरस्टैंड। बट बेसिकली ब्रॉडली पीपल हु नो थोड़ा अबाउट अकाउंटिंग, गैप अलाउज, यूएस गैप अलाउज फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। यहाँ पे लीफो इज प्रोहिबिटेड, ओनली फीफो एंड वेटेड एवरेज आर यूज्ड। अगेन जिसको नहीं पता है छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, ओके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस ये वो अभी छोड़ दो, इंटरेस्ट छोड़ दो, रिवर्सल ऑफ इन्वेंट्री छोड़ दो, ये 1 2 3 4 पॉइंट्स है ना, छोड़ दो, ये सब चैप्टर्स का ही पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन्वेंट्रीज, उसका ही पार्ट है, चिल करो, ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी। ओके, फॉर एन एनालिस्ट, सो व्हाई अनदर क्वेश्चन वुड बी कि यार सर ये क्या घड़ी घड़ी यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस कर रहे हो। अरे जरूरी है, मैं एज एन एनालिस्ट और एज एन इन्वेस्टर मैं देखूंगा कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है। देयर कैन बी अ कंपनी विच इज बेस्ड आउट ऑफ यूएस एंड इट इज इनटू एफएमसीजी, इट कैन बी बेस्ड आउट ऑफ यूरोप एंड इट इज इनटू एफएमसीजी। Can I compare both? I cannot really do that. Why? Because one is governed under US GAAP, other is governed under IFRS. So I, as an analyst, मुझे पहले समझना पड़ेगा कि यूएस गैप में क्या क्या इफेक्ट्स होती है जिससे स्टेटमेंट्स बनते हैं, आईएफआरएस में क्या होती है जिससे स्टेटमेंट्स बनते हैं, सो दैट मैं या तो यूएस को आईएफआरएस में कन्वर्ट कर सकता हूं टू कंपेयर बोथ, या फिर आईएफआरएस को यूएस गैप में कन्वर्ट कर सकता हूं टू कंपेयर बोथ। पर कंपनीज के बीच में कंपैरिजन तब जाके होगी व्हेन आई ब्रिंग थिंग्स टू द सेम टेबल, सेम पेज पे लाके कंपैरिजन होता है, राइट। So important to understand the difference for an analyst as it factors in comparing similar companies under different reporting standards. Yeah. Following are the information sources that an analyst can use. This is a very generic section. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला चैप्टर के, एनुअल रिपोर्ट्स, जो कंपनी के वेबसाइट में जाओगे ना तो वहां पे इन्वेस्टर रिलेशंस करके एक पेज होता है, वहां पे एनुअल रिपोर्ट होता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है, अर्निंग्स का कॉल्स, जो लेट से जब भी कोई अर्निंग्स रिलीज होता है ना तो मैनेजमेंट बैठता है कॉल पे, और एनालिस्ट या तो इन्वेस्टर्स भी बैठते हैं और वो क्वेश्चंस पूछते हैं, Q&A सेशन होता है। तो दैट इज अर्निंग्स कॉल्स, प्रेजेंटेशंस, प्रेस रिलीजेस, समथिंग दैट इज आउट इन द प्रेस जहाँ पे एकदम समरी में दिया जाता है रिजल्ट, communication with management or the investor relations team, right? I, as an analyst, can go to the investor relations team and ask a few questions about the company and I can get answers to it, right? We've discussed a lot of this in equity and we will be doing it more. धीरे धीरे आएगा वो, ठीक है। पब्लिक थर्ड पार्टी सोर्सेज, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ सकता हो, बीसीजी का, बेन का, मैकिंजी का रिपोर्ट देख सकता हो, बिग फोर के रिपोर्ट्स देख सकता हो, एनी अदर रिपोर्ट्स ऑन द वेब। सोशल मीडिया से थोड़ा आई हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक्चुअली थोड़ा क्रेडिबिलिटी समझनी जरूरी है सोर्सेज की। गवर्नमेंट या इकोनॉमिक एजेंसीज है, समटाइम्स वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यू नो फेडरल गवर्नमेंट अपने रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो वो भी काम में आते हैं।
सो थर्ड पार्टी सोर्सेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मोर सो फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। अगर मुझे सेक्टर का व्यू चाहिए, इंडस्ट्री का व्यू चाहिए, या फिर ओवरऑल मैक्रो व्यू चाहिए इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट्स का, तो मुझे ऐसे अलग अलग बॉडीज का रिपोर्ट यूज करना पड़ेगा जिसका व्यू है ये सब चीजों पे। कंपनी का रिपोर्ट्स जो यूज करूंगा ना, तो दैट इज मोर फॉर द कंपनी स्पेसिफिक, कि भाई कंपनी के नंबर्स क्या है, वो सब के लिए होता है। Then comes third party proprietary sources. Okay, the third party proprietary sources का मतलब है, there are a lot of databases in the world. Once you get into the industry ना, आपको ये सब समझेगा. Bloomberg is a, it's also into journalism. It's also into database management. दुनिया भर का डेटा ब्लूमबर्ग के पास है, फैक्ट सेट के पास है, तो these are all data managers को basically बड़े बड़े डेटाबेसेस है जो मैनेज करते हैं। आपको कोई भी कंपनी के बारे में कुछ भी इसमें मिल जाता है, ब्लूमबर्ग, फैक्ट सेट, एनालिस्ट रिपोर्ट, सेल साइड रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। व्हाट इज सेल साइड रिपोर्ट्स? अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स और अ लॉट ऑफ equity research houses, they report, they publish a lot of research reports on companies or sectors which can be useful for their analyst. Consultancy firms जैसे मैंने बोला, बिग फोर, बेन, मैकेंजी, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एसोकैम का एक रिपोर्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस है, आईआरडीए का कोई रिपोर्ट है, तो वो सब भी काम में आता है। वो तो रेगुलेटर है दो, बट या एम्फी है फॉर एग्जांपल, एम्फी इज मोर ऑफ एन इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो उसका रिपोर्ट मैं यूज कर सकता हूँ मेरे एनालिसिस के लिए, राइट। एनालिसिस कभी भी कंपनी के खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं होता है। भले ये पूरा सब्जेक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिखा रहा है, बट अगर आप इक्विटी का मेरा वीडियोस देखोगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ वहां पे कि सिर्फ कंपनी के एनालिसिस से कुछ नहीं होता है। कंपनी, इंटरनल, एक्सटर्नल, मैक्रो, माइक्रो सब व्यू लेना पड़ता है, तब जाके कंपनी में आप प्रॉपर वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर पाओ। एंड प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च यार, if you are short of a lot of data or whatever data that is available in the market is not really appealing you, आपको credible नहीं लग रहा है वो, right? तो आप आपका क्वेश्चनेयर्स, सर्वेज, गूगल फॉर्म्स बना के लोगों में बांट सकते हो, उनका नेचुरल व्यू ले सकते हो। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को मिल सकते हो, यू नो लेट्स से कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक एक्सपर्ट होता है। लेट्स से इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रिटेल बिजनेस, you can meet Mr. Radhakishan Damani, for example, DMart owner, to get a view on how these businesses are run, right? So that can be the case. Site visits, आप companies के factories में जाओ, देखो क्या कैसे हो रहा है, पूरा समझो मैन्युफैक्चरिंग। वेरी जेनरिक रीडिंग, बहुत ही जेनरिक चैप्टर है, मैं जानता हूँ ये, बट इट जस्ट सेट्स द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट। सो या, see you in the next reading, and that's where the real game starts, FSA का। Yeah, see you, all the best guys.